Good morning class. Today we are going to continue with our exercise number 12.1. In the last class we have solved till question number 4. Today we will start from question number 5. Before starting the class I want to tell you, if you people are having any doubts, you are having our contact number. Only 2 teachers are taking maths in class 5th. Myself and Nandkumari madam. If you are having any doubt, you all are having our personal contact number. You can contact with us. If you are not getting clear through our videos, you can contact with us. Okay? Only me and Nandkumari madam is taking maths in class 5th. So you can contact anytime if you are having any doubt regarding the class. Now, let's come back to our topic. Question number 5 is we have to compute the simple interest. SI is the short form for simple interest. In the last class we have understood what is simple interest, how we are calculating it. Okay? And the formula also. In the first question, principal, P stands for principal. Principal is given rupees 2800, time is 3 years and rate of interest is 12%. Okay? So now we will take out the simple interest. What is the formula for simple interest? Principal into rate into time upon 100. This is the formula. We will put the values in the formula and find it out. Principal P is rupees 2800, 2800. Rate of interest is 12% into time is 3 years upon 100. पहले आप कैंसिल करने की कोशिश करिए. अगर कैंसिल आउट होता है, नहीं तो फिर हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे. एज यू कैन सी हियर 1 0 1 0 कैंसिल्ड आउट, 1 0 1 0 कैंसिल्ड आउट. व्हाट इज लेफ्ट आउट? 28 into 12 into 3. Denominator nothing. 12 3s are 36. 28 into 36. 6 8 जा 40. ये तो समझ में आया होगा ना. 12 3 जा मैंने क्या लिखा है 36. ये मत बोलिएगा कि मैम ने बस अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया. So you can solve like this also. 12 3 are 36. So you will multiply 28 into 36. 6 8 are 48. 8 carry 4. 6 2 are 12. 12 plus 4 is 16. 3 8 are 24. 4 carry 2. 3 2 are 6. 7 8. 8 0 1 carry. So what is the answer for first question? The answer for first question is 1008 rupees. So the simple interest for the first given question is rupees 1008. Like this you will try to solve the question. Okay, only we have to put into the formulas and solve. Okay, now moving on to next question. In the next question, principal, time, rate of interest will change. I am not rubbing the formula because formula is that only. Number 2. Number 2 is principal is rupees 1000. Time is 5 years. Rate of interest is 14%. Look at the blackboard carefully. Principal 1000. Rate of interest 14. Time is 5 years upon 100. कैंसिल आउट पहले आप कैंसिल करने की कोशिश करेंगे. जो कैंसिल आउट होगा 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल आउट. व्हाट इज लेफ्ट आउट? 10 into 14 into 5. What is 14 5s are? 70. 14 5s are 70. 70 into 10 is 700. So for the second question the interest is rupees 700. Okay. Now next, third you will try by your own. I am solving fourth question because decimal percentage is given. That's why I am solving question number 4 here. Third is simple question like this 1 and 2. Third you will try to solve it by your own.
rupees 4,000, time is 6 years, rate of percentage is 10.5%. Okay, now put in the formula. Principal is rupees 4,000, rate of interest 10.5, time is 6 years upon 100. 1 0 1 0 1 0 1 0 cancel out. Okay, now we will remove the decimal from here. Here 1 places of decimal is given, so 1 0 10 will come. 1 0 1 0 cancel out. What is left out? ये समझ में आया आपको? मैंने ये डेसिमल रिमूव किया है, इसलिए मैंने यहाँ 10 लिखा है. अगर यहाँ 2 places of decimal होता तो I will add up 2 zeros here. If 3 places of decimal, 3 zeros here. Okay, सिर्फ ये 1 places of decimal है, इसलिए मैंने यहाँ से decimal remove करके यहाँ इसको डिनोमिनेटर में 0 किया. We will cancel out. What is left out? 4 into 105 into 6. 4 6 are 24. 24 into 105. 105 into 24. 4 5s are 20. 0. 2. 4 1s are 4. 2 5s are 10. 0. 1. 2 1s are 2. 0 2 5 2. So what is the answer for this question? Answer for this question is rupees 2,520. Okay. Now number 5. Number 5 I hope you can solve. Number 6 I am solving here. 3 and 5 you will try to solve by your own. Number 6 I am solving here, 6 and 7. Number 6th is principal is equals to rupees 500. Time is 2 1 by 2 year. Rate of interest is 5 1 by 2%. Okay, as you can see here, principal is not in the mixed form, but time and rate is given in the mixed fraction form. Okay, so first we will convert the mixed fraction form into normal proper fraction. Okay, so कैसे करते हैं आपको याद है ना? Multiply, add. 2 2s are 4, 4 plus 1 is 5 by 2 year. Rate 2 5s are 10, 10 plus 1 is 11 by 2%. Now put inside the formula. Simple interest is equals to principal into rate into time upon 100. Principal is 500. Rate of interest 11 upon 2 into time is 5 by 2 into 100. Okay, 100 तो फॉर्मूला का ही है. ये आपका टाइम हो गया और ये आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये टाइम. ओके, नाउ कट. 1 0 1 0 कैंसिल आउट. 1 0 1 0 कैंसिल आउट. ओके, नाउ नथिंग कैंसिल्ड आउट, सो फिर हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे. जो लेफ्ट आउट है 2 into 2. 2 2s are 4 here. 11 into 5 is 55. 55 into 5. 5 5s are 25. 5 carry 2. 5 5s are 25. 27. 275 divided by 4. Now divide this by 4. What you will get? डिवाइड करके देखेंगे हम यहाँ पे 4 से. 275. 4 6 are 24. 4 7s are 28. ज़्यादा हो जाएगा तो 4 6 are 24. 7 minus 4 3 5. 4 8s are 32. 4 9s are 36. 36 will be greater, so 4 8s are 36 minus. Sorry, 4 8s are 32 minus it. 3 point लगा. 0 4 7s are 28. यहाँ 28 आएगा तो 2 आ जाएगा, बचेगा 2075. ओके, सो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें आंसर? आंसर विल बी रुपीज 68.75. ओके, ओनली रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर हियर टाइम, principal or rate of interest is given in the fraction form, you have to first convert into proper fraction. जब भी ये mixed fraction में कोई भी quantity आपको होगी, आपको सबसे पहले इसे mixed fraction से proper fraction में change करना है, फिर उसके बाद आपको solve करना है. Okay, now number 7 also is like this.
7th वाला भी हम सॉल्व करेंगे। नंबर 7th, प्रिंसिपल, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 7th का क्या है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज ₹800, टाइम इज 3 1/2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8 1/2%। जस्ट इसके पहले हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। व्हेनेवर इट इज गिवन इन अ मिक्स्ड फॉर्म, जब भी मिक्स्ड फॉर्म में दिया जाएगा आपको मिक्स्ड फॉर्म से कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। फर्स्ट 3 2 6, 6 + 1 इज 7/2 ईयर हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 8 16, 16 + 1 इज 17/2%। फॉर्मूला में पुट करिए P × R × T अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। प्रिंसिपल इज 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 17/2 इंटू टाइम इज 7/2 और ये 100 फॉर्मूला का। 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा 14, 17 × 14 बचा। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए 17 × 14, 4 7 जा 28, 8 कैरी 2, 4 1 जा 4 5 6, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 8 6 + 7 is 13, 3 carry 1 2. So what is your answer for this question? Answer is means interest is ₹238. ठीक है। Now अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। Now let us see question number 6. Bharat Singh borrowed ₹90,000 from a bank. भरत सिंह ने कितने पैसे बोरो किए बैंक से? मनी borrowed by Mr. सिंह। कितने मनी borrowed किए उन्होंने? 90,000। इतना समझ में आया आपको? आज मैं सिर्फ हिंदी में समझा रही हूँ बिकॉज सम पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मैं हिंदी में समझा रही हूँ। मनी बोरोड बाय मिस्टर सिंह, कितने पैसे उन्होंने बैंक से बोरो किए? 90,000। कितने टाइम के लिए किए हैं? फ्रॉम अ बैंक फॉर 4 years, मतलब आपको टाइम मिल गया, टाइम इज 4 year। ओके, फाइंड द इंटरेस्ट टू बी पेड बाय हिम इफ द बैंक चार्जेस आर ₹18% पर ईयर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का 18% है पर ईयर, ठीक है, एक ईयर में 18% लगते हैं उसके चार्जेस। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट फाइंड करना है। ओके, यू आर हैविंग द फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला P × R × T अपॉन 100। ठीक है, आपने फॉर्मूला लिखा। नाउ यू विल पुट द वैल्यूज इनसाइड द फॉर्मूला। T आप समझ गए, T मतलब टाइम, ये हमारा हो गया। R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो हम बोरो करते हैं या जो डिपॉजिट करते हैं। तो इसने कितनी मनी बोरो की? 90,000। तो ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल। सो राइट डाउन हियर 90,000 इज द प्रिंसिपल, rate of interest is 18 into time is 4 year upon 100. Cancel out 1 0 1 0 1 0 1 0 cancel out. What is left out? 900 into 18 4s are how much? 72. Okay, so now multiply this. 9 2s are 18, 8 carry 1, 9 7s are 63, 64 and 2 zeros. I am doing it direct, you will do in rough and then you will write the answer. Okay, so what is the interest that Mr. Bhagat Singh, yes, Mr. Bharat Singh will pay after 4 years at an interest rate of 18%? He will pay 64,800 rupees. तो आपका इंटरेस्ट क्या निकल आया? ये 64,800 rupees. Understood?
Now, next is Dinesh deposited. Question number 7. Question number 7 is Dinesh deposited rupees 2600 in a bank. तो deposit money means क्या हो गया? Principal. Okay, I am writing in the short form. Deposited money is rupees 2600 in a bank for time period of 5 year. 5 year मतलब वो आपका टाइम हो गया. और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है? 16%. तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम आफ्टर 5 ईयर. इसमें आपको अमाउंट फाइंड करना है. आपको याद है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? इंटरेस्ट. वी हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट. सो वी विल पुट द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपॉन 100. प्रिंसिपल क्या है? 2600. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 16. टाइम इज 5 अपॉन 100. ओके, 10 10 कैंसिल आउट, 10 10 कैंसिल आउट. व्हाट इज लेफ्ट आउट? 26 इंटू 16 इंटू 5. सो 16 5s is 90, सॉरी 80. तो 26 इंटू 80 कितना हो जाएगा? 8 6 48. 8 4 कैरी, 8 2 16, 17 18 19 20. ये 20. सो ये आपका आ गया इंटरेस्ट. ये हमारा क्या आया है? इंटरेस्ट. आई एम डूइंग इट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन. यू विल राइट इन रफ एंड देन यू विल डू द मल्टीप्लीकेशन पार्ट. ओके, तो आपको क्या फाइंड करना था? अमाउंट. अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना है? 2600. उसमें इसको इंटरेस्ट कितना मिला? 2080. अब आप इसे प्लस कर दीजिए. 0864. आपका टोटल अमाउंट कितना उसे मिलेगा? 4680 रुपीज. ओके, जब भी आपको अमाउंट फाइंड करना है तो आपको अमाउंट का सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए. प्लीज राइट द फॉर्मूला फर्स्ट. ओके, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके पास कौन सी क्वांटिटी नहीं है. अमाउंट का फॉर्मूला लिखा, हमारे पास प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट नहीं है, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, देन वी विल फाइंड द अमाउंट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8. Now question number 8 is Bhajan Lal deposited money 20,000 in a bank. तो इसने कितनी मनी डिपॉजिट की बैंक में? ₹20,000. ठीक है. The bank gave him 12% interest per year. बैंक उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है? 12% पर ईयर, मतलब हर साल वो उसे 12% दे रहा है. ठीक है. टाइम पीरियड कितना है? कितने टाइम के लिए उसने पैसे रखे हैं? द बैंक gave him 12% interest per year. How much total interest he get after 5 years? तो उसका टाइम पीरियड कितना है? 5 years के लिए उसने पैसे रखे हैं बैंक में. अगर बैंक वाले उसे 12% पर ईयर दे रहे हैं तो 5 ईयर में उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट. यू हैव टू फाइंड इट आउट. इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100. प्रिंसिपल इज ₹20,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12. टाइम इज 5 years अपॉन 100. ओके, सो 10 10 कैंसिल आउट, 10 10 कैंसिल आउट. व्हाट इज लेफ्ट आउट? 200 into 12 into 5. So 12 5s are 60. 60 into 200 is 6 2s are 12. Zeros. So what interest he will get after 5 years from the bank? He will get ₹12,000 as an interest. Okay. Now next one is question number 9. Please listen it very carefully. Question number 9. आप ध्यान से देखो.
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से सुनिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज टाइम इज गिवन डिफरेंट वे हियर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, लिसन केयरफुली. राम बोरोड ₹2500 फ्रॉम बैंक. उसने कितने पैसे बोरो किए? मनी बोरोड इज इक्वल्स टू ₹2500. ठीक है, ऑन बैंक ऑन जनवरी. टाइम उसने कब से बोरो किए? जनवरी 8, 2012 at an rate of interest 12% per annum. How much total amount he get? आपको अमाउंट फाइंड करना है. Will he return to the bank on March? कब से कब तक? मार्च 21, 2012 तक. ठीक है, तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है? इसमें आपको अमाउंट फाइंड करना है. ठीक है, हमें प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम भी पता है, बट इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टाइम. तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? अमाउंट. फर्स्ट हम यहाँ टाइम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, ऑल ऑफ यू नो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं. ठीक है, यहाँ कब से उसने पैसे जमा किए? 8 जनवरी. तो 31 में से अगर हम 8 डेज माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 11 - 8 3 23. तो 23 डेज हो गए उसके जनवरी के. अब जनवरी के बाद कौन सा मंथ आता है? फेब्रुअरी. आप यहाँ देख सकते हो, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उस ईयर 2012 में लीप ईयर था. तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? फेब्रुअरी में यहाँ दिया हुआ है ड्यू टू लीप ईयर काउंट 29 डेज फॉर फेब्रुअरी. फेब्रुअरी में हमें कितने डेज काउंट करने हैं? 29. मार्च कब तक? मार्च के हो गए 21 डेज. तो इतने दिनों के लिए उसने पैसे ये रखे हैं इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट में. तो उससे कितना अमाउंट मिलेगा ये हमें कैलकुलेट करना है. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द टाइम. ये आपको समझ में आया डेज कैसे काउंट किए? मार्च के 21 डेज, क्योंकि फर्स्ट से लेके 21 तक 21 डेज ही होंगे. फरवरी का होल मंथ, इसीलिए मैंने पूरे डेज लिए हैं. जनवरी उसने 8 में डिपॉजिट किए हैं, तो जनवरी में टोटल डेज होते हैं 31. 31 में से 8 दिन निकाल दो, कितने बचे? 23 दिन के लिए. तो जनवरी में उसने कितने दिन के लिए पैसे जमा किए थे? 23. नाउ ऐड अप दिस. इस टाइम को आपको ऐड करना है. 9 + 1 10, 10 + 3 is 13, 3 कैरी 1, 2 4 6 7. तो आपके टोटल डेज हो गए 73. बट ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये पर ईयर के अकॉर्डिंग है. ठीक है, तो आपको टाइम को चेंज करना पड़ेगा पर ईयर के अकॉर्डिंग. अगर ये मंथ होते तो 1 ईयर में कितना मंथ होता है? 12 मंथ्स होते, तो हम इसे 12 से डिवाइड करते. लेकिन ये डेज में है, तो आप लोगों को भी पता है 1 ईयर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डेज? 365 डेज होते हैं. अगर हम यहाँ 8 को काउंट करेंगे तो यहाँ 7 डेज माइनस होंगे, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 74 डेज. ठीक है, अगर हम 8 को भी इंक्लूड करते हैं तो. और ये लीप ईयर था, इसलिए इस ईयर में एक दिन बढ़ गया, अदरवाइज ये 365 डेज ही होते. तो लीप ईयर के कारण यहाँ 1 ईयर में, इस ईयर में कितने डेज हो गए? 366 डेज. तो अब आपको डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो यू विल डिवाइड दिस 74 बाय 366. ये डिविजर हो जाएगा, ये डिविडेंड होगा. ठीक है, यहाँ देखिए मैं डिवाइड. डेज आर क्लियर और नॉट? अगर हम 8 को काउंट करेंगे, काउंट द डेज. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 days. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20 दिन हो गए. 28 29 30 31 24 दिन. तो हमारे जनवरी में कितने डेज हो गए? 24 डेज. फरवरी में 29, मार्च में 74 डेज. ठीक है, तो टोटल हो गए डेज 74. अब हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो पर एनम मतलब पर ईयरली होता है. तो इस डे को हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज होते हैं. बट यहाँ दिया हुआ है कि 2012 में लीप ईयर था, तो फरवरी में 29 डेज हो गए, तो उस ईयर में कितने टोटल डेज हो गए? 366. अब आपको 74 को 366 से डिवाइड करना है. तो यहाँ देखेंगे हम कैसे करेंगे.
विल बी डिविडेंड सॉरी डिविजर। 366 से आपको 74 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो 0 लगेगा पहले, 360 से 0 जा 0, ये हो गया। हमने पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाया। अब इसके टेबल में जाएंगे, 1 जा तो सेम ही होगा, 2 जा देखिए, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 6 जा 12, 13 3 1 कैरी, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 7 32, 2 जा लोगे 7 32, ठीक है। माइनस करेंगे 3 10, 10 माइनस 2 8, ये 0 ये 0, ठीक है। अब पॉइंट लग चुका है तो हम यहाँ 0 लेंगे। 366 इंटू 3, 3 6 18 8 कैरी 1 18 1 19, 3 3 जा 9, 998 हो जाएगा। अगर हम यहाँ एक और 0 लेंगे तो 3 जा, ये आप जब डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करने के बाद आएगा 0.2, ओके। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका रेट ऑफ सॉरी टाइम आ जाएगा 0.2 ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम ये अमाउंट निकालेंगे, सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालिए 2500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 इंटू टाइम इज 0.2 अपॉन 100, ठीक है। ये 10 10 10 10 कैंसिल आउट, ठीक है। ये हटा 10 आ गया, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 5 जा, 12 इंटू 5 विल बी 60। तो कितना हो गया आपका इंटरेस्ट? इंटरेस्ट आ गया 60 रुपीज। सो आप अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपने निकाला, आपका इंटरेस्ट आ गया 2560 रुपीज, ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 होगा क्वेश्चन नंबर 10 is Hari Singh borrowed rupees 1600 for 1 year 10 month. How much total amount will he pay at the rate of 12%? तो हरी सिंह ने टोटल अमाउंट कितने बोरो किए हैं? 1600, 1600 एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। टाइम पीरियड है 1 year 10 months, ठीक है। पर एनम मतलब पर ईयर, तो ये ईयर में है, ये मंथ में है, तो हम मंथ को कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा ये? 1 year इज इक्वल टू 12 मंथ, तो हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 110/12, 2 5 जा 2 6 जा। अब इसे आप करो 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 इज 11/6 ईयर। ये आपका टाइम हो गया। कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ कट करके इसे मिक्स फ्रैक्शन से चेंज करना है प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ फाइंड द इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। प्रिंसिपल है 1600 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 इंटू टाइम है 11/6 और ये 100 इंटू, ठीक है। 10 10 10 10 10 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 2 जा 12, क्या बच गया? 16 इंटू 2 11 जा 22, मल्टीप्लाई इन द रफ 16 इंटू 22, 2 6 जा 12, 2 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 6 जा 12, 2 कैरी 1 3, 2 5 3। सो आपका कितना इंटरेस्ट बनेगा? ₹352, ओके। आपको समझ में आया? व्हेनेवर जब भी ये मंथ में डेज में आपको देगा टाइम, आपको कन्वर्ट करना है उसे ईयर में पहले, बिकॉज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली नहीं मिलता है, आपको 1 साल के लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए हमें इसे 1 ईयर में चेंज करना पड़ेगा। हमने चेंज किया, देन पुट इट इन द फॉर्मूला एंड देन सॉल्व, ओके। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर होल चैप्टर नंबर 12, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ऑल द टीचर्स आर हियर टू हेल्प यू, ठीक है। सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी हेल्प करने के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट टीचर से। थैंक यू, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।